नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ईरान पर हमले के बाद बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ईरान को अब शांति स्थापित करनी चाहिए। अगर शांति स्थापित नहीं हुई तो हम फिर अटैक करेंगे। भविष्य में हमले कहीं अधिक बड़े और आसान होंगे। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने बयान जारी किया और कहा कि ट्रंप और मैं अक्सर कहते हैं शक्ति के माध्यम से शांति, पहले शक्ति आती है फिर शांति आती है। अमेरिका ने बहुत ताकत के साथ काम किया। ईरानी सुप्रीम लीडर का भी बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका का युद्ध में प्रवेश करना 100% उसी के नुकसान में है। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today
has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. اونایی که با سیاست‌های این منطقه آشنا هستن میدانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که اونو در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. صدمه آمریکا و اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بمانه، صدمه جبران ناپذیر خواهد بود بدون تردید. तो ईरान पर हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का बयान और इजरायल के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं नेतन्याहू का बयान और अब खामनेई का बयान, क्या कुछ मायने निकाले जाएं? और इस हमले के बाद हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, इन बयानों के क्या मायने और मिडिल ईस्ट में आखिर अब चल क्या रहा है? आगे की डेवलपमेंट की बात करें तो क्या कुछ नजर आता है इन बयानों के बाद? किस तरीके की तल्खी और बढ़ती नजर आएगी? क्या जानकारी, क्या अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए, मिडिल ईस्ट में पहले जो ईरान और इजराइल की लड़ाई के बाद जो है जो तनाव था, वो अमेरिका की इस कार्रवाई ने उस तनाव को बढ़ा दिया है। और इसका एक प्रमाण आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी अभी थोड़ी देर पहले कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की ये कार्रवाई दोनों देशों के बीच में और ये पूरी स्थिति में तनाव बढ़ाने वाली है। मैं आशा करता हूं कि अब भविष्य में जो कुछ भी होगा वो आपसी बातचीत के बाद होगा। और जिस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई, 3 न्यूक्लियर साइट्स पर जिस तरीके से हमला किया गया, उसके बाद ईरान का भी बयान आया है जी। खामनेई सामने आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब इसके बाद जो कुछ भी होगा उसके लिए 100% जिम्मेदार अमेरिका ही होगा। तो एक तरीके से ईरान ने भी पूरी तरीके से ऐलान कर दिया है कि वो चुप नहीं बैठेगा। साथ ही ईरान के जो वरिष्ठ नेता हैं कई, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि ईरान पूरी तरह से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जीरो नहीं करेगा, क्योंकि ईरान कई शांतिप्रिय कामों के लिए भी न्यूक्लियर कार्यक्रमों का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे में अब जब इस तरीके की परिस्थितियां हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है सौरभ कि लगातार हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में लगातार जो तनाव बढ़ा है इस पूरी कार्रवाई के बाद से, वहीं दूसरी तरफ ईरान में स्कूल और कॉलेजेस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उसके एयर स्पेस को ना इस्तेमाल करने की सलाह भी दी जा रही है दुनिया के देशों को। तो वहां पर तनाव लगातार बढ़ गया है। और अब सबसे बड़ी बात यही है कि अब ये तनाव कहां तक आगे बढ़ता है, ईरान इसका कैसे जवाब देता है। क्या वो तुरंत कार्रवाई करता है जैसे कि वो इजराइल पर उसने हमला शुरू किए थे, उसके बाद क्या वो आने वाले दिनों में अमेरिका पर भी हमले शुरू करता है? तो ये एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और जिस तरीके से परसों जो है ईरान में जिस तरीके से खामनेई का शक्ति प्रदर्शन हुआ था, शुक्रवार की बात है ये, और शुक्रवार यानी कि कल जुम्मे की नमाज हुई थी, उसके बाद कल वहां पर बड़े स्तर पर जो है भीड़ जो है सड़कों पर आई और उसने ईरान के जो सबसे बड़े नेता हैं खामनेई, उनका समर्थन किया था। यानी कि उनका कहना था, लोगों का कहना था कि वो जो है जो कर रहे हैं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, अपनी ताकत के लिए, वो जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यानी कि पूरा देश जो है ईरान के साथ खड़ा है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है सौरभ क्योंकि इजराइल लगातार ये प्रोपेगेंडा चला रहा था कि खामनेई जो है वो ईरान को एक ऐसी लड़ाई में धकेल रहे हैं जिसकी उसे बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो वो ईरान के लोगों से अपील कर रहा था कि वो इस सरकार का साथ ना दें। जी ललित, अब सवाल यह है कि दुनिया कितने धड़ों में बटेगी? इस्लामिक कंट्रीज जो है वो ईरान के समर्थन में आएंगे खुलकर, या अप्रत्यक्ष रूप से वो समर्थन करेंगे, या फिर अमेरिका के साथ नाटो कंट्रीज रहेंगे? किस तरीके की स्थिति उसमें देखने को मिलेगी? और चाइना को, रशिया का हम अक्सर जिक्र करते रहे हैं, आपने भी जिक्र किया है,
उनकी प्रतिक्रिया इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण होगी। भारत का रुख हमेशा से तटस्थ ही रहा है, इस पूरे मामले में हर युद्ध के मामले में तटस्थ रहा है। क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलेगी आने वाले समय में? देखिए, भारत तो पहले ही इजराइल और ईरान को लेकर कह चुका है कि इस लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो कुछ भी हासिल होगा वो बातचीत से हासिल होगा। अब रही बात रूस और चीन की, तो रूस और चीन की स्थिति कुछ ऐसी है कि उनकी तरफ से सपोर्ट किया जाता है किसी एक देश को, क्या किसी एक देश को सपोर्ट किया जाता है, या फिर सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि लगातार जिस तरीके से तनाव पसरा हुआ है इस पूरे इलाके में, वो जो तनाव है वो कितना आगे तक बढ़ता है। रूस और चाइना क्या ईरान के साथ खड़े होते हैं या फिर वो ईरान से शांति की अपील करते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से इस पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है, उस तनाव के बाद अब लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं दुनिया के अलग अलग देशों में। सौरभ, मैं एक पॉइंट और भी आपकी ऐड करना चाहूंगा कि अमेरिका ने 3 साइट्स पर हमला तो कर दिया है, लेकिन अब इस बात को लेकर भी चिंता जताई जा रही है कि जिन न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ है, क्या उन न्यूक्लियर साइट्स पर कहीं रेडिएशन का रिसाव तो नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह बहुत खतरनाक हो सकता है। और जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, B-2 बॉम्बर, एक अमेरिका का एक ऐसा विमान जो कि अपने घातक बॉम्ब के लिए जाना जाता है, अगर उससे ये कार्रवाई हुई है तो निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि कहीं रेडिएशन का रिसाव ना हो रहा हो। जी बिल्कुल। अब ऐसे में किस तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी? एक सवाल ललित, क्या शांति की स्थापना जो अमेरिका अपील कर रहा है ईरान से, अब वो संभव है इस हमले के बाद? क्योंकि एक तरफ शांति की स्थापना की अपील, दूसरी तरफ ये कहना कि अगर नहीं माना, परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका गया तो हमले और बढ़ा दिए जाएंगे। क्या दोनों, शांति और युद्ध, एक साथ चल सकता है? जैसे कि भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है कि युद्ध के साथ वार्ता नहीं हो सकती, वार्ता होगी तो शांति पीस टेबल पर बैठना पड़ेगा। देखिए, एक बात तो साफ है कि पहले तो अगर किसी भी स्तर पर इसमें शांति की हम बात करते हैं तो शांति के लिए जरूरी है कि पहले युद्ध लड़ाई खत्म हो, यानी कि लड़ाई को लेकर सीज फायर किया जाए। और अगर सीज फायर करते हैं तो इसका मतलब ये जाएगा कि ईरान अमेरिका की और इजराइल की बात मान गया है और उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दिया है। अब सवाल ये होता है कि क्या वो पूरी तरह से अपने प्रोग्राम को छोड़ेगा? क्या वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेकर जिस तरीके से हमला किया जा रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर हमला किया गया, उससे कहा जा रहा है कि आप अपनी न्यूक्लियर ताकत को बंद करिए, न्यूक्लियर बम बनाना बंद करिए, तो वो क्या ऐसा करने में सक्षम होगा? क्या वो इस बात को मानेगा? तो कई सारी अहम चीजें हैं। इन सारी अहम चीजों को कितनी गंभीरता से ईरान ने साफ कर दिया है कि अब जो कुछ भी होगा उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति ये नजर आ रही है कि अमेरिका ने जो एक तरह से क्रिया की, ईरान की ओर से उसकी तरफ से प्रतिक्रिया दे दी गई है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में कितनी महत्वपूर्ण तरीके से आने वाले दिनों में रूस और चाइना का स्टेटमेंट आता है और दोनों देशों के बीच में किस तरह की प्रतिक्रिया, खासकर अमेरिका, इजराइल और खासकर ईरान के बीच में भी देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया ललित, बने रहे आप हमारे साथ।